वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राशि श्रीवास्तवा और आज का वीडियो होने वाला है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कमेंट सेक्शन से ही उठाया है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्दी ऑफ कंप्लीट वीडियो। मतलब वो टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी एंड व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट। मतलब आई होप दैट पर्सन वांटेड टू आस्क कि जो लोग बोलते हैं कोचिंग को ओवर हाइप करते हैं या सेल्फ स्टडी को ओवर हाइप करते हैं, तो व्हाट इज़ द रियलिटी। तो ऑब्वियसली आई एम द राइट पर्सन टू टेल दैट बिकॉज फॉर कैट आई हैव डन सेल्फ स्टडी फॉर द कैट एग्जाम, बट फॉर इंटरव्यू आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन एन काइंड ऑफ इंटरव्यू के प्रोग्राम में, जो कि एक कोचिंग लोकल कोचिंग ऑफर कर रही थी in Lucknow, and I enrolled myself into it. और फिर I will tell you from start so that you get an exact idea. तो when I started preparing for CAT, I was doing it like self study. मैंने बताया ही है, I bought some second hand books of Arun Sharma and I started studying from that. और I was solving questions और क्वांट्स के लिए I used to refer to the videos YouTube पर. DLRI के लिए भी I did the same. Verbal was a bit strong, तो उसके लिए I just solved the questions and it was way good to go, ऐसा था. फिर मैंने बताया था कुछ वीडियोस में अपने कि मैंने फ्री टेस्ट सीरीज़ ली थी जो ऑब्वियसली अवेलेबल होती है. इफ़ आई विल गेट बैक माई नोट्स एंड ऑल, आई विल श्योरली पुट इट हियर और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक. तो उसमें मैं बता दूँगी देयर आर सम वेरी गुड साइट्स जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एंड फॉर so this was about my CAT preparation. Now comes the basic one, which is interview preparation. तो उसके लिए because I was very kind of nervous कि यार I don't have to miss this chance of getting into an IIM, so I have to kind of prepare myself very well. और उसके लिए I wanted to do some kind of a course on coaching करना चाहती हूँ मैं interview के लिए, because I never gave an interview before that. तो फिर I just searched some papers somewhere, like नेट पे चेक किया और भी कई जगह पर, and I got कि there is a coaching nearby, local है, I won't take the name, and उसकी branches और भी कुछ जगहों पर हैं as far as I know. तो I just got into it कि हाँ I have to do this and I enrolled into it. Approx I guess it was based on my percentile. तो उसमें मेरे ख्याल से 1 to 2,000 समथिंग आई पेड फॉर रजिस्ट्रेशन इनटू इट. और फिर आफ्टर दैट इट वाज काइंड ऑफ वन डे आई वेंट ऑफलाइन क्लास के लिए, which was very basic. I saw there were a lot of people from different backgrounds. फिर they started taking online mocks, and in online mocks you also know how much kind of demotivating sometimes it gets, because you see a lot of people who have a better communication skills, a lot of good profiles than you, and you get demotivated. And मेरे साथ तो बहुत ही बढ़िया एक इंसिडेंट ही हुआ था. So basically I was giving that online mock and there were a lot of people, and जो वो बंदा था कोचिंग वाला, like the interviewer who was there, he pinpointed me, Rashi, we will start with you. And I was like, oh my god, I didn't even prepare my introduction properly. And then we started he started asking questions, started asking some questions like some very basic question, I would say, from chemistry and different, like my educational background. And when he started that, I like first answer I could not give. When he asked something about like a question, I don't remember, it was very basic, I didn't know that, and उसके बाद I could not answer it. So एक होता है ना पूरी सबके सामने, there are so lot of people who are of same age, they are going to give the same exam, you feel kind of intimidated कि यार I'm not able to answer in front of them. तो एक आंसर I could not give, फिर उसके बाद एक नहीं दिया, फिर दूसरा नहीं, फिर तीसरा नहीं, and like that
फिर वो एक काइंड ऑफ अ लूप बनता गया, बिकॉज फर्स्ट आंसर मैं नहीं दे पाई, एंड उसकी वजह से जो एक बैक ऑफ माई माइंड देयर वाज अ थिंग कि यार आई कुड नॉट आंसर दिस, व्हाट दीज पीपल माइट बी थिंकिंग अबाउट मी, और उसकी वजह से द आंसर्स विच आई माइट बी एबल टू आंसर ऑल्सो वो भी मैं नहीं कर पाई. तो ऑल दोज थिंग्स, एंड आई लिटरली क्राइड आफ्टर दैट, like after that interview and whatever mock interview ended, I cried. And from that day I stopped attending their classes. I stopped kind of, they didn't call offline classes much, and I didn't, like, I just quit that. I was like 1-2,000 got wasted, but I don't want to get demotivated. एंड देयर वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स भी था जिससे मैंने बात की, तो ही टोल्ड याश यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन यू, द वे यू आर जस्ट प्रेजेंट एज इट इज़, यू आर वेरी गुड. एंड दैट boosted a lot of confidence in me. And after that I just went there. In all, like, I didn't even do any other coaching or something. I just prepared some very basic questions, HR questions like strengths, weakness, all those things, जो कि मुझे यूट्यूब पे मिल जाता था. एंड आई जस्ट प्रिपेयर्ड द आंसर्स. आई डिडेंट डू एनी मिरर वाला थिंग. आई डिडेंट डू इट लाइक अ मॉक और टॉकिंग टू समवन. नो, आई डिडेंट डू एनी थिंग. I was like, if I'm prepared about the question, I will automatically have the confidence and I will be able to answer it confidently, and that's it. तो ऐसे करते करते my first interview was CAP interview. It went well and gave me a lot of confidence. तो उसके बाद फिर there were a lot of interviews lined up, like IIM Lucknow, Kozhikode. I went to Delhi to give Kozhikode interview. I went to IIM Lucknow to give Lucknow ka interview. Then Visakhapatnam was online. So this is how different interviews were conducted. And Nagpur का भी था शायद, if I remember, online था. तो all these things, like, फिर धीरे धीरे दैट कॉन्फिडेंस केम इन एंड आई स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि हाँ आई कैन डू इट. इट्स नॉट अ वेरी बिग. और वो चीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज वी ऑफन गेट यू नो नर्वस, और हमें ऐसा लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार इंटरव्यू है, व्हाट वी विल डू, व्हाट विल हैपन. सी द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक यूर इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. तो जस्ट ट्राई टू गिव the answers of the questions which are asked in a very humanly manner, in a confident manner, and that person is, and sometimes you can even make mistakes also. So don't just get very disheartened, yaar ye galti hogi. Don't think too much about it. Just give your best. You are like, you just have to present yourself. There's nothing wrong or right answer in that. Who are you? That is, they want to know. So yeah, I think 7-8 मिनट हो गए हैं. तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग एज पर मी. सो आई फील कि अगर शायद मैंने वो इंटरव्यू वाला जो कोर्स था वो कर ख़त्म नहीं किया होता बीच में ही, तो शायद मैं उतनी मोटिवेटेड नहीं रह पाती एट द एंड ऑफ इट. सो कॉल लेना पड़ता है खुद से, बेस्ड ऑन वॉट यू फील एंड वॉट इज़ योर लाइक गट फीलिंग क्या आ रही है तुम्हें. उस टाइम पे मुझे यही आई थी कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर मी, दिस कोर्स एंड ऑल. इट इज़ गोना मेक मी मोर डिमोटिवेटेड, एंड जो मेरे अंदर बच्चा कुछ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन है दैट विल ऑल्सो गो अवे. तो आई डेंट वॉन्ट टू रिस्क दैट, और एंड में रियलाइज़ करना, रिग्रेट करना इज़ नॉट एन ऑप्शन दैट टाइम. तो आई जस्ट वॉज लाइक कि ओके, let's see what's gonna happen. Let me first be prepared. Let me prepare the questions that are going to ask. और एक PI kit भी तो देते हैं ना ये IIMs वाले. तो I just prepared the answers from that, like what's the difference between sales, marketing, all those basics answer. और that's good to go. You know, you just have to prepare your kind of your graduation के subjects, your work ex के subjects, and whatever you did. They just want to know how committed are you. How dedicated are you? So with that note, I hope you got your answer. This is basic reality. I don't have much of the information. I did self study in NEET also, तो मुझे कोचिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है. एंड मैंने आई रिमेंबर मैंने मैथ्स की कोचिंग की थी क्लास 5th में. आफ्टर दैट आई नेवर डिड एनी कोचिंग अदर देन दैट. तो कोचिंग का मेरा दूर दूर तक कुछ भी ऐसे नाता नहीं है. तो आई कैन नॉट टेल मोर अबाउट इट, बट sometimes it is necessary also if you get the good faculty, good, you know,
प्लेस टू बी इन, जहाँ पे अच्छी से मतलब जो गैप्स हैं वो फुलफिल कर पा रहा है अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो इट्स अ वे लाइक गुड फॉर यू. बट मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं है, तो आई एम नॉट द पर्सन टू आंसर. तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट समवन जिसने कोचिंग की है कैट के लिए, एंड दे वुड बी एबल टू आंसर बेटर. मेरे पास इतना ही था इन्फॉर्मेशन, एंड देयरफॉर आई गेव यू. आई होप यू गॉट योर आंसर, एंड फॉर टुडे दैट्स इनफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत ही मेहनत करके, बहुत ज़्यादा एडिटिंग में भी मेहनत की थी मैंने, जो यूजुअली मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उसमें मैंने की थी, बट उस पर कॉपीराइट आ गया एंड आई हैड टू लाइक नॉट स्ट्राइक, क्लेम आया था, तो मैंने वो डिलीट कर दिया. बट वो कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट नहीं था, मतलब उसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था. आई मेड अ मैशअप काइंड ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स जो कि मैंने खुद गाया था, बट बिकॉज लिरिक्स और मेलोडी पैटर्न पे होता है कॉपीराइट, तो आई गॉट, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया है. आई वॉन्टेड टू डू इट रियली बैडली, बट अभी मेरे से लगता नहीं हो पाएगा. लेट्स सी गाइज. इसलिए आई जस्ट मेड दिस वीडियो टुडे फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो लेट्स क्लियरिफाई दिस इज़ अ गुड क्वेश्चंस, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.